Assalamualaikum and good morning to all of you. How are you students? Hope so that you are good and blessed with the best of your health and you are safe and sound at your homes by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay student, myself Mr. Vidya Kohar, your science teacher. In the previous lecture we have learnt about the metals reaction. Okay, we have learned how do metal reacts with water, oxygen and acids. Okay, we have seen the reaction of metal, how do metal reacts with these three. Now I have also given, okay, I remember that I have given you few questions to be solved. There are, I think, one word answers I have given to you to solve. Okay, and there were few questions which I have told you that I will discuss these questions answers with you in the next video. So without wasting our time, let's open your books. Let's start our lecture and see what was the answer of the given question. Okay, how many questions I have given, we will see these questions first. After that we will start our today's topic. So open page number 34 in your book, page number 34. Okay, page number 33 open कीजिए. Here is the questions which I have given you to solve. मैंने आप लोगों को ये questions दिए थे and we have so far covered the topic how do metal reacts. As I have told you, how do metal reacts with water, with acids and with oxygen, and these were the questions which I have given you to be solved after reading. Okay, question number 1 is name one metal that reacts with water and acid. एक मेटल का नाम बताएं जो वाटर और एसिड दोनों से रिएक्शन करता है. सो सोडियम, ठीक है, सोडियम आपका वाटर से भी रिएक्ट करता है और एसिड से भी रिएक्ट करता है. नेम टू मेटल्स दैट रिएक्ट विद एसिड बट नॉट विद वाटर. टू मेटल्स का नाम बताएं जो एसिड से रिएक्ट नहीं करते, एसिड से रिएक्ट करते हैं जबकि वाटर से नहीं करते. मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. मैंने जो सिंबल बनाए हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सिंबल्स लिखे हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा. मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, देखिए यहाँ पर भी मेंशन है मैग्नीशियम, स्पेल यहाँ से ले लें, एंड कैल्शियम हियर. ठीक है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. ठीक है. ओके, नेम 3 metals that should never be put into acid. नेम 3 metals के नाम बताएं जिन्हें एसिड में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए. ठीक है, here is the answer. Metals such as calcium, sodium and potassium react so violently that they should never be added to acid. Okay. Okay. Question number 4. What is an unreactive metal? Unreactive metal क्या है? Name one example. उसकी एक example दें. Here is the answer. An unreactive metal do not react with either water or acid. Unreactive metal वो metal है जो react नहीं करता water और acid से. देखिए, an unreactive metal do not react with either water or acid. For example, gold की example. गोल्ड ना तो आपके वाटर से रिएक्ट करता, ना ही एसिड से. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन वाई अनरिएक्टिव मेटल आर गुड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. अनरिएक्टिव मेटल ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों काम आता है? बिकॉज दे डू नॉट टार्निश, यानी कि ये अपना लस्टर लॉस नहीं करते, स्पेशली एयर में या फिर मॉइस्ट में, यानी कि गीला किया जाए या फिर एयर में छोड़ दिया जाए तो ये अपना लस्टर लॉस नहीं करते. ठीक है, ना ही ये डिज़ोल्व होते हैं, ना किसी किस्म का रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये अनरिएक्टिव मेटल हैं जैसे कि आपका गोल्ड. क्यों? दे डू नॉट टार्निश. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 इज विद विच डू मेटल्स रिएक्ट मोर इजीली. सबसे ज़्यादा आसानी से मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं? वाटर, एसिड और ऑक्सीजन. वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ. एक्सप्लेन योर आंसर. अपना आंसर एक्सप्लेन करें. हियर इज़ द आंसर. मेटल रिएक्ट मोस्ट इजीली विद एसिड सच एज एल्युमिनियम, जिंक, iron, tin, lead.
ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है, कोई मसला नहीं, लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। These metals do not react with air और water readily। देखिए मोस्ट ईजीली जो मेटल्स हैं रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। एग्जांपल दी गई है मेटल्स की। ये जो मेटल्स मेंशन्ड हैं ये एयर और वाटर के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। मेटल दैट रिएक्ट विद वाटर ऑफन रिएक्ट वेरी वायलेंटली विद एसिड। वो मेटल्स जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं जब उन्हें एसिड में डाला जाता है तो वो एसिड के साथ बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सो द क्वेश्चन वाज किसके साथ ज़्यादा इजीली रिएक्ट करते हैं तीनों में से, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एक्सप्लेन योर आंसर, आपका आंसर एक्सप्लेन कर दिया गया। नाउ टर्न योर पेज, ओपन पेज नंबर 34। हेयर इज़ आवर टुडेज़ टॉपिक। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ठीक है। लेट्स लुक व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, ठीक है। लेट्स सी इट इन डिटेल, इसे डिटेल में देखते हैं। आई एम गोना रीड, मैं रीड करने लगी हूँ, सो बी केयरफुल। व्हेन यू स्टडी द रिएक्शंस ऑफ मेटल, जब आप मेटल के रिएक्शन स्टडी करते हैं विद वाटर, एसिड एंड ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स और ऑक्सीजन के साथ, यू कैन प्रॉबेबली सी अ पैटर्न। आप एक पैटर्न देखते हैं। मेटल्स दैट आर वेरी रिएक्टिव विद वन आर यूजुअली रिएक्टिव विद द अदर टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। वो मेटल्स जो एक के साथ रिएक्ट करते हैं, एक किसके साथ, वाटर, एसिड या ऑक्सीजन, इन तीनों में से किसी एक के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे या तो वो दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं या बहुत कम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि आप ले लें, किसी एक एग्जाम्पल ले लें। आप मैग्नीशियम के एग्जाम्पल ले लें। आपने पीछे पढ़ा कि मैग्नीशियम वाटर के साथ बहुत लेसर एक्सटेंट पर रिएक्ट करता है, बट एसिड के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि मतलब ये देखें, आपका यहाँ पर गिवन है मेटल्स दैट आर वेरी रिएक्टिव विद वन, जो एक के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यूजुअली रिएक्टिव विद द अदर टू अ ग्रेटर, या तो दूसरे में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा या बहुत कम। एग्जाम्पल दे दी मैंने आपको किसकी, मैग्नीशियम की। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप सोडियम की एग्जांपल ले लें, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है लेकिन एसिड के साथ बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सटेंट पर तक रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। मेटल विच आर अनरिएक्टिव, वो मेटल्स जो अनरिएक्टिव होते हैं, जो रिएक्शन नहीं करते विद वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के साथ, आर अनरिएक्टिव विद द अदर, वो दूसरों के साथ भी अनरिएक्टिव रहते हैं, ओके। मेटल्स कैन बी अरेंज इन अ सॉर्ट ऑफ लीग टेबल अकॉर्डिंग टू द वे दे रिएक्ट। यानी कि मेटल जिस तरह रिएक्ट करते हैं उन्हें ग्रुप बनाकर एक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दिया गया है। दिस लीग टेबल इज़ कॉल्ड रिएक्टिव सीरीज़। इस लीग टेबल को रिएक्टिव सीरीज़ कहा जाता है। आपके मेटल्स को उसकी रिएक्टिविटी की बेस पर अरेंज कर दिया गया है, उसकी ग्रुपिंग कर दी गई है। ग्रुपिंग करने के बाद उसे एक टेबल की फॉर्म में, टेबल लीग की फॉर्म में अरेंज कर दिया गया है, ठीक है, लीग टेबल की फॉर्म में, ठीक है। और वो लीग टेबल क्या कहलाता है, रिएक्टिव सीरीज़ कहलाती है। पोटेशियम इज़ एट द टॉप ऑफ द लीग टेबल। पोटेशियम टॉप पर है लीग टेबल पे बिकॉज इट रिएक्ट फास्टेस्ट विद वाटर। ये वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है एंड रिएक्ट सो वायलेंटली विद एसिड, और एसिड के साथ उससे भी ज़्यादा वायलेंटली, ठीक है, रिएक्ट करता है। दैट इट शुड नेवर बी पुट इनटू इट, इसलिए इसे एसिड के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। एट द बॉटम ऑफ द लीग टेबल आर सिल्वर, गोल्ड एंड प्लाटिनियम। यानी कि सबसे एंड में रिएक्टिव सीरीज़ जो बहुत कम रिएक्टिव हैं वो कौन से मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लाटिनियम, बिकॉज दे आर हार्डली एवर रिएक्ट, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं। वाटर के अंदर भी रिएक्ट नहीं कर सकते, एसिड में भी गोल्ड डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करते हैं वो टॉप पर हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाला कौन है, हेयर इज़ द रिएक्टिव सीरीज़। सबसे ज़्यादा टॉप पर कौन है, पोटेशियम है, ठीक है। पोटेशियम बर्न इन एयर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एयर में बर्न हो सकता है। रिएक्शन विद वाटर, वायलेंटली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में वायलेंटली रिएक्ट करता है। और एसिड में एक्सट्रीमली वायलेंट रिएक्शन, बहुत ज़्यादा जो है इसका रिएक्शन वायलेंट है। इसी तरह पोटेशियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, दैन एल्युमिनियम, दैन जिंक, आयरन। ये अरेंजमेंट है मेटल्स की, ठीक है। जो टॉप वाला है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे नॉन रिएक्शन में आ जाएगा। देखिए सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनियम ऑक्सीजन और एयर में कोई रिएक्शन शो नहीं करते। इसी तरह वाटर में भी इनका कोई रिएक्शन नहीं है और एसिड में भी इनका कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखें आपका ये टिन, लेड एंड कॉपर। आपका टिन और कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड फॉर्म्स ऑन द सरफेस
इन एयर, एयर में टिन और कॉपर के अराउंड ऑक्साइड्स बन जाते हैं, ठीक है, आपके ऑक्साइड्स बनाते हैं, लाइक कॉपर ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, ठीक है। ओके, अगर इनका रिएक्शन वाटर के साथ देखा जाए, रिएक्ट विद स्टीम, डायरेक्टली विद स्टीम डिक्रीज गोइंग डाउन द टेबल, यानी कि ये जो हैं सारे रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, ठीक है। ये बाकी जो हैं ये बर्न होते हैं ऑक्सीजन और एयर में, ठीक है। इनमें से वाटर में बाकी यहाँ से मैग्नीशियम से लेके आयरन तक, सॉरी ये यहाँ तक जो सीरीज़ है, ठीक, ये वाटर में क्या करती है, वाटर से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती, जब वाटर स्टीम की फॉर्म में होता है तब रिएक्ट करती है, ठीक है। और ये रिएक्टिविटी जैसे जैसे बॉटम पर जाते जा रहे हैं, ये रिएक्टिविटी स्टीम के साथ कम होती जा रही है। और एसिड में रिएक्टिविटी डिक्रीजेज गोइंग डाउन द टेबल, और अगेन एसिड में भी जैसे जैसे ये डाउन जाते जा रहे हैं, इनकी रिएक्टिविटी एसिड से कम होती जा रही है। और एक पॉइंट पर पहुँचे कि सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनियम रिएक्शन ही नहीं है, आपका कॉपर भी, ठीक है। कॉपर का वाटर में कोई रिएक्शन नहीं है, कॉपर का एसिड में कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। आपका कॉपर बेस में इंक्लूड है। आपकी कॉपर की वायर है, उसे पानी में डालकर देख लें, उस पर कोई भी रिएक्शन शो नहीं होगा। सम टाइम मेटल डू नॉट शो देयर ट्रू रिएक्टिविटी, बाज़ों का जो मेटल्स हैं अपनी ट्रू रिएक्टिविटी यानी कि अपना रिएक्शन शो नहीं करते। दिस इज़ बिकॉज, ये इस वजह से है, द मेटल इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ऑक्साइड, कि मेटल के अराउंड ऑक्सीजन की लेयर, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ऑक्साइड किससे बनते हैं, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बना लेता है, उसके अराउंड ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, विच प्रोटेक्टेड, जो उसकी हिफाजत करता है, यानी कि मज़ीद अंदर वाला जो मटेरियल है, मेटल है, वो रिएक्ट नहीं कर पाता, ऊपर एक लेयर आ जाती है ऑक्साइड की। एल्युमिनियम इज़ गुड एग्जाम्पल है, एल्युमिनियम इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। वंस द ऑक्साइड इज़ रिमूव, एक दफ़ा उसका ऑक्साइड रिमूव कर दिया जाए, द ट्रू पोजीशन ऑफ द मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज़ कैन बी इस्टेब्लिश, और तब हमें पता चलता है कि वो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या पोजीशन है, ठीक है। अगर उसके ऊपर ऑक्साइड रहेगा तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, जब रिएक्ट ही नहीं करेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा वो कितना रिएक्टिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका पोटेशियम में एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जस्ट फॉर इमेजिन, पोटेशियम के ऊपर, ठीक है, अगर लेयर बन गई ऑक्साइड की, ठीक, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, एग्ज़ाम्पल जस्ट लाइक आप छोड़ें उसे, आपका टिन ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड ले लें, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के ऊपर ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट है, तो आपको कॉपर की रिएक्टिविटी पता ही नहीं चलेगी अनटिल ये ऑक्साइड लेयर हटा दी जाए, ठीक है। This is all about today's lecture. We have read about the reactivity series. What is reactivity series? Reactivity series is the arrangement of metals. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ मेटल है अकॉर्डिंग टू द वे दे रिएक्ट, उस वे में जिस वे में ये रिएक्ट करते हैं, यानी कि उनको ग्रुपिंग कर दी गई है कि किस तरह, एक लीक टेबल बना दिया गया कि ये किस तरह रिएक्ट करते हैं। जो मोस्ट रिएक्टिव हैं वो सबसे ऊपर हैं, और जो लीस्ट हैं और नॉन रिएक्टिव हैं उसे बिल्कुल लास्ट में रखा गया है। ओके, इसके साथ साथ टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस ये के हैं आपको ऑन पेज नंबर 35। नंबर 1, व्हाट इज़ रिएक्टिव सीरीज़, रिएक्टिव सीरीज़ क्या है, वाई इज़ पोटेशियम एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज़, पोटेशियम को रिएक्टिव सीरीज़ के टॉप पर क्यों रखा गया है, ठीक है। नंबर 3, पुट दीज मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के ऑर्डर पे लिखें, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसे पहले लिखें, फिर दूसरे नंबर पे जो रिएक्टिव है आप अपना देखें रिएक्टिव सीरीज़ का टेबल यूज़ कर सकते हैं उससे। नंबर 4, डिस्क्राइब व्हाट यू वुड सी, आप क्या देखेंगे व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम इज़ ड्रॉप इनटू वाटर, जब सोडियम के पीस को वाटर के अंदर ड्रॉप किया जाएगा। स्टीम इज़ पास्ड ओवर हीटेड मैग्नीशियम, स्टीम पास की जाएगी गर्म मैग्नीशियम के ऊपर, यानी कि मैग्नीशियम को हीट करके उसके ऊपर से स्टीम पास की जाएगी, तो क्या होगा, आप क्या देखेंगे, अ पीस ऑफ आयरन इज़ लेफ्ट इन द एयर, आपका जो आयरन का पीस है उसे हवा में छोड़ दिया जाएगा। अ गोल्ड रिंग इज़ लेफ्ट इन अ वीक एसिड, एक गोल्ड रिंग को वीक एसिड में छोड़ दिया जाएगा, डिब्बो के छोड़ दिया जाएगा। आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन आपने शेयर करनी है। ओके स्टूडेंट, दीज आर द क्वेश्चन यू हैव टू बी सॉल्व in your off copies, and the next lecture we will discuss these the answer of these question first, after that we will start our next topic. Okay, till then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना काम मुकम्मल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह we will meet in next lecture with new topic. Till then, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।